السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 34 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ناول سجیسٹ کرنا چاہوں گی جس کا نام زم حریر ہے، جس کی میں نے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ وہ فل فینٹیسی بیسڈ ناول ہے، تو اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہٹ کے ناول ریڈ کریں، جس طرح یہ تھوڑا سا الگ ہے، تو اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو جائیں جا کر میرے چینل پر زم حریر ناول ہے بائی امارہ حسین کا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شام ہو رہی تھی، گرداوی مینشن کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو چکی تھی۔ سیاہ مرسڈیز گیٹ پر آ کر رکی تو گارڈز نے لپک کر گیٹ کھولا۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اینا اپنی سفید اسکرٹ کو سنبھالتے ہوئے ہاتھوں میں ایک فولڈر اٹھائے تیز سے قدم اٹھاتی چلتی آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بس اس کی پیروی میں چلی آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر رکا۔ اینا اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی کہ اچانک وہ کسی کی چوڑی پشت سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں نکال کر بیچتی ہیں؟ وہ بنا پلتے ہی بدتمیزی سے بولا۔ اینا تلملا کر رہ گئی۔ میری کافی میرے کمرے میں، وہ آدھا ادھورا حکم دیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ میں اب اس کی کافی بناؤں گی؟ اس نے آنکھیں چوٹی کر کے سیڑھیوں کو گھورا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ گزرا تھا۔ پھر وہ پاؤں پٹکتی کچن میں چلی آئی۔ کافی تو اسے پلاؤں گی، یاد رکھے گا حسن کرداری۔ وہ کافی مشین کے پاس کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ شے خوفزدہ سا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کافی تیار ہو گئی تو وہ کپ ایک ٹرے میں رکھے وہاں سے نکل آئی۔ اس لڑکی میں ڈر نامی کوئی چیز نہیں۔ شیف نے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اگر ڈرنا اگر ڈر نامی مادہ نہیں بھی ہے تو آج کے بعد پیدا ہو جائے گا۔ ملازمہ کچن سمیٹنے لگی جب شیف نے افسوس سے دروازے کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے اینا نکلی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو تولیہ کندھے پر گرائے باہر نکلا۔ وہ بس ایک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تولیہ ہینگر پر پھینکتے وہ اس وقت ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے ہی جواب دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ حسن کا رخ آئینے کی جانب ہی تھا۔ سر، آپ کی کافی؟ وہ بنا سر اٹھائے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹنے لگی۔ رکو، حسن نے مڑتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے معطب سی کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اینا الجھی سی کھڑی تھی۔ وہ الجھن تھی، خوف نہیں تھا۔ اس نے تولیہ یہ تک نہ دیکھا تھا کہ وہ شرٹ کے بنا کھڑا ہے، جبکہ حسن کو اس کا معتبانہ انداز کھٹکا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اینا کی نگاہ اس کے پیروں پر تھی۔ ایک سیاہ چپل میں اس کے سرخ سفید پاؤں اس وقت چاندی کے مانند چمک رہے تھے۔ وہ حسین تھا، بے حد حسین۔ اس نے جھک کر کافی اٹھائی۔ سر میں جاؤں؟ وہ فوراً پلٹی۔ میں نے کہا جانے کا۔ اینا نے دروازے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ وہیں برف بن گئی۔ حسن نے اس کی پشت پر نگاہیں جمائے ہی کافی کا گھونٹ بھرا۔ آہ تھو! اس نے فوراً ہی وہ کافی تھوک دی۔ اینا لرز کر رہ گئی۔ بہت ربش! وہ گرجا تو اینا پر اب کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ مڑی نہیں۔ حسن گھوم کر اس کے سامنے آیا اور کپ اینا کی جانب بڑھایا۔ کیا؟ اینا نے سوالیہ انداز میں سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈرنک اٹ! اس نے تنے جبڑوں سے ہی حکم صادر کیا۔ اینا نے تھوک نکلا۔ سر میں یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے حد درجہ کوشش کی خود پر قابو پانے کی۔ پیو اس کو! حسن کی آواز تاریک تھی۔ اینا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے بعد اینا کے لیے آنکھیں چپکنا ناممکن ہو چکا۔ ڈرنک اٹ! اس نے اسی تاریک آواز میں کہتے اینا کی جانب کافی کا کپ بڑھایا جسے اس نے چپ چاپ پکڑ لیا۔ ان ون سے اینا نے کسی ٹرانس کے تحت وہ
कब मुंह को लगाया, वो आंखें छोटी केस के हलक में वो गर्म कड़वा मादा उतरते हुए देख रहा था। कप खाली हो गया मगर ऐना की आंखें भरी हुई थी आंसुओं से और जब्त की शिद्दत से। नेक्स्ट टाइम डोंट यू डेयर टू मेस विद मी। इसने कप ऐना के हाथ से पकड़ा तो ऐना का ट्रांस टूटा था। आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बह गए थे। नाउ गेट आउट। इसने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बुलंद आवाज में कहा तो ऐना एक पल के लिए कांपी और फिर तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। सिली गर्ल। इसने सर झटका और कप में बाकी एक घूंट भर लिया। आई लाइक दिस बटर कॉफी बट यू डोंट। वो तिरछा मुस्कुराया। वो मुंह पर हाथ रखी सीढ़ियां उतर रही थी कि लाउंज में ही मंसूर की निगाह ऐना पर पड़ी। उसने तासुब से ऐना की जानिब देखा। ऐना ने एक जख्मी से निगाह अपने बाग पर डाली और बाहर निकल गई। मंसूर ने सर झटका और फाइल्स उठाकर स्टडी रूम में चला गया। करीबन आधी रात का वक्त था जब इसके बेड साइड टेबल पर पड़े मोबाइल में थरथराहट पैदा हुई। वो आंखें मलता उठ बैठा। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फोन पाकिस्तान से था जहां इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। इसने उलझते हुए फोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम मामा। इसने जमाई रोकते हुए सलाम किया। इब्राहिम। मिनाल बेगम की आवाज में घबराहट वाज़ेह थी। मामा क्या हुआ? वो फौरन सीधा होकर बैठा। नींद हक से उड़ी थी। तुम्हारे बाबा, कहते हुए इनके अल्फाज बिखर गए। क्या हुआ बाबा को? मामा प्लीज बताएं। इब्राहिम का दिल एक लम्हे को बंद हुआ था। उठकर मानो यहाँ से सीधा भाग कर पहुंच जाए। तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है। तुम आ जाओ इब्राहिम। इन्होंने अटक अटक कर अल्फाज अदा किए तो इब्राहिम को लगा कि किसी ने इसकी शहरत काट दी हो। बाबा। वो जेरी लग बड़बड़ाया। कहाँ है बाबा? इब्राहिम को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। वो मजीद किसी को खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस वक्त तो हरगिज़ नहीं। वह अस्पताल में है। तुम तुम आ जाओ प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ मामा प्लीज आप खुद को संभालें। हेलो हेलो मामा। वो बात कर रहा था कि फोन कट गया। इसके बाद इब्राहिम ने 12 कॉल मिलाई मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। वो पैरों में जूता डसते ही नीचे आया। आपने अच्छा नहीं किया सुफियान। मिनाल बेगम ने मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए तासुब से लंच टेबल पर बैठे सुफियान गुरशी को देखा। अब मोबाइल पर मुसलसल कॉल्स आ रही थी मगर सुफियान साहब के हुक्म के मुताबिक वो फोन उठा नहीं सकती थी। मैंने बिल्कुल ठीक किया है। समझता क्या है वो खुद को। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इन्होंने नैपकिन से लब थपथपाते हुए प्लेट साइड पर खिसकाई। मगर सुफियान को परेशान हो रहा होगा। मीनार बेगम ने एक बार फिर से स्क्रीन पर देखा जहां अब फोन कॉल आना बंद हो चुकी थी। होने दो। और जो यहाँ मैं इसके लिए तड़पता हूँ इसका क्या? मेरा बेटा है मगर बरसों से दूर है। मगर तालीम मुकम्मल करने गया था मगर वहीं का होकर रह गया है। अब आएगा तो जाने नहीं दूंगा। और तो और मुझे बिना बताए अमेरिका भी चला गया। कुछ ज्यादा ही खुद मुख्तार हो गया है। वो सर झटकते उठ खड़े हुए। मीनार बेगम ने कंधे गिरा दिए। वो इन बाप बेटे के बीच फंस गई थी। वो लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बाबा दादू को क्या हुआ है? याकूब बेचैन सा था। इसने सुफियान गोरसे को बस तस्वीरों में देखा था मगर इसको इसे अलग सा लगाव और उन्स हो गया था क्योंकि ना होता खून तो खून होता है और खून चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना हो कशिश तो करता है। इनको हार्ट अटैक आया है। वो मसरूफ सा मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाता हुआ बोला। इसके पास जहरा खड़ी थी जिसने दीना को गोद में उठाया हुआ था जबकि मरजान इन सब से अनजान बेंच पर बैठा पाँव चिल्ला रहा था। हेलो। हाँ जरा। बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है मुझे जाना होगा। वो फोन पर बात करता हुआ दूर निकल गया। इधर जहरा। हम तुम्हारी फैमिली कहाँ है? जहरा तुम्हारी फैमिली कहाँ है? याकूत ने पास खड़ी जहरा को देखा जो दीना को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मेरी फैमिली? जहरा खामोश हो गई। ओ क्या सबकी डेथ हो गई? याकूत ने अफसोस से जहरा की जानिब देखा। जहरा को अब अरबी और उर्दू बोलना आ गई थी इसलिए अब किसी को इसे बात करते हुए मुश्किल नहीं होती थी। नहीं। जहरा ने फौरन नफी में सर झटका। तो फिर तुम इनके पास क्यों नहीं जाती? याकूत ने सवाल दोहराया। वो लोग दूर हैं। जहरा ने उदासी से दीना की पुष्ट पर थपकी दी। कितना दूर है?
کیا تم ٹریول نہیں کر سکتی؟ یاقوت کے سوال آج ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے نہیں کر سکتی تھی، میرے پیپرز نہیں تھے، مگر اب کر سکتی ہو۔ ذرا پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ لوگ شاید مجھے قبول نہ کریں۔ زہرا اداس سے مسکرائی۔ مگر کیوں؟ یعقوب کی آنکھیں زہرا کے اداس سے چہرے پر مرکوز تھی۔ زہرا اس کے سوالوں سے جتنا بچنے کی کوشش کر رہی تھی، یعقوب کا اصرار اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دراصل زہرا کا حلق خشک ہوا۔ چلو بچوں۔ اسی دوران ابراہیم وہاں آ گیا۔ زہرا کی سانس بحال ہوئی۔ کیسی ہو؟ موبائل اسکرین بلنک ہوئی تو اس نے فوراً میسج اوپن کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں اس شیطان کی قید میں؟ میسج بھیج کر اس نے موبائل سامنے پڑی میز پر پٹک دیا۔ ریسٹورنٹ میں آتے جاتے لوگوں کا رش تھا۔ کچھ جوڑیاں اپنی ٹیبلز پر خوش گپیوں میں مصروف تھیں تو کچھ لوگ اپنے لیپ ٹاپ اپنے ٹیبل پر رکھے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے بیچ وہ ایک ملک شیک کا گلاس سامنے رکھے آتے جاتے لوگوں کو کھول رہی تھی۔ اس کو اپنے علاوہ وہ دنیا کا ہر شخص برا لگ رہا تھا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اس کا ڈر کم کرنے کو؟ موبائل اسکرین دوبارہ بلنک ہوئی تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا تھا۔ اینا نے ایک گھونٹ ملک شیک کا بھرا اور میسج سینڈ کر دیا۔ اچھا موڈ کیوں اتنا آف ہے؟ میسج دیکھ کر اینا کے چہرے پر کرب سا اتر آیا۔ تم ابھی تک پوچھ رہے ہو؟ مجھے قادر کی فکر ہے یار۔ اس نے تھکے سے انداز میں کرسی کے پشت سے ٹیک لگا دی۔ اس کی تو مجھے بھی بہت فکر ہے۔ تم کچھ کرتی کیوں نہیں؟ تم تو شاہ کے ساتھ ہوتی ہو اب۔ میسج دیکھ کر اینا کا حلق کڑوا ہوا۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں جو وہ مجھے سب کچھ بتائے گا۔ اس نے اڑ کر میسج بھیجا۔ اچھا میں نے بتانا تھا کہ باس پاکستان گئے ہیں۔ خیریت ہے؟ اینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے یہاں بھی جانے سے پہلے بس سراہ کو بتایا ہے۔ سفیر مجھے باس پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ اکیلے کتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اینا کی آنکھوں کی چمک مانند بڑھ گئی۔ وہ شخص ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا سب کچھ تھا۔ مجھے بھی، مگر وہ مجاہد ہے۔ ان کو لڑنا آتا ہے، پھر خواہ جنگ کا میدان ہو یا زندگی کا۔ میسج پڑھ کر اینا سخت سا مسکرائی تھی۔ اچھا تم قادر کا پتہ کرو جلدی سے جلدی، مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ میں جانتا ہوں شاہ نے اس کو ذاتی انا کی وجہ سے بھی ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر اس نے عشا کو چھوڑ دیا ہے تو قادر کا کیا قصور؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ قادر کو خدا نخواستہ۔ نہیں سفیر، قادر کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اینا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ وہ لوگ چند ملاقاتوں میں ہی ایک دوسرے کے دوست و بازو بن گئے تھے۔ وہ سب ایک جست کی مانند بن گئے تھے۔ اچھا عائشہ کب تک واپس آ رہی ہے؟ کچھ دیر بعد اینا نے میسج بھیجا۔ اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے کچھ دن باہر رکھے گی۔ آئے گی تو سیدھا یہیں آئے گی۔ میں بتا دوں گا تمہیں، تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں محتاط رہنا۔ میسج پڑھ کر اینا مسکرائی، مگر جواب دیے بنا اس نے فون اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اب وہ واپس جانے کے لیے تیار تھی، ایک بار پھر سے اس شیطان کا سامنا کرنے کے لیے۔ کالج گیٹ پر وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی آج پھر سے اپنی گاڑی کی منتظر تھی۔ پی کیپ والا لڑکا ہنوز کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اب صفا کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب خوف مدمل ہو رہا تھا۔ اگر وہ اتنے دنوں سے کچھ نہیں کر پایا تو اب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس پی کیپ والے لڑکے کو دیکھ رہی تھی کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ کالج قریباً خالی ہو چکا تھا، بس اکا دکا اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ ارمان اپنے برانڈڈ گلاسز لگاتا ہوا اس کی جانب چلا رہا تھا۔ اف، اب اس کو کیا چاہیے؟ صفا نے دانت کچکچائے۔ السلام علیکم۔ وہ خوش مزاجی سے سلام کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، صفا نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔ ڈرائیور نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ اگر آیا ہوتا تو میں یہاں کھڑی نہ ہوتی، صفا نے بدمزہ ہوتے ہوئے جواب دیا تو ارمان نے ایک پل کے لیے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ کافی حاضر جواب ہیں آپ۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا آپ یہاں میری خاطر جوابی کی تعریف کرنے آئے ہیں۔ صفا نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہنس دیا۔ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
कॉफ़ी कड़वा ख़्याल है मेरा। सिफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया। ओह! कोई बात नहीं, आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिएगा। इसने फ़ौरन पेशकश की। नो थैंक्स, गाड़ी आती होगी। सिफ़ा ने बेज़ारगी से घड़ी पर वक़्त देखा। 2 बज चुके थे, मगर गाड़ी का दूर-दूर तक निशान न था। क्या अभी तक आप मुझे गलत समझती हैं? वो फीका सा मुस्कुराया। आप इतने अहम नहीं हैं कि मैं आपको सही या गलत समझने में वक्त बर्बाद करूं। सिफा ने कड़खत लहजे में जवाब दिया तो अरमान के सर सरेंडर करने के अंदाज में दोनों हाथ खड़े कर दिए। आपसे कोई नहीं जीत सकता प्रिटी लेडी। व्हाट? सिफा ने की आवाज़ बेसाख्ता बुलंद हुई तो अरमान ठिठका। व्हाट हैपेंड? अरमान ने घबराकर इधर उधर देखा। आप मुझे प्रिटी लेडी नहीं कह सकते। सिफा को अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। इस लफ्ज़ के साथ 2 लोगों की यादें जुड़ी हुई थी और वह इस वक्त इन दोनों के बारे में ही सोचना नहीं चाहती थी। एक तरफ उल्फत थी तो दूसरी जानिब गुस्सा था। हाँ, गुस्सा था, नफ़रत नहीं थी। वो चाहकर भी हसन से नफ़रत नहीं कर पाई थी। वो शख्स इसकी ज़ात पर एक छाप छोड़ गया था, एक ऐसे जज़्बे की छाप जो मोहब्बत का हरगिज़ ना था और शायद हमदर्दी का था या फिर पछतावे का। आई एम सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही। अरमान पूरी तरह झंझलाया। सिफा का शदीद रद्द अमल इसको चुभा था। एक बात पल्ले से बांध ले। सिफा ने उंगली खड़ी की। इससे पहले वो कुछ कहती गाड़ी का हॉर्न इसको सुनाई दिया। सिफा ने एक पल के लिए मुड़कर गाड़ी को देखा, फिर सामने खड़े अरमान को। इसने बेख्तियार उंगली पीछे खींच ली और फिर अब और इस पर अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहती थी। सिफा लंबे लंबे दांत पड़ती गाड़ी में जा बैठी। कहाँ रह गए थे तुम? इसने बैठते ही ड्राइवर पर गुस्सा निकाला। बीबी, माफ़ कर दें, पेट्रोल ख़त्म हो गया था और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए देर हो गई। ड्राइवर ने खुश्क होते हलक के साथ बताया तो सिफा के माथे पर बल ढीले पड़े। ठीक है, अब जल्दी चलो। इसने खुद को कंपोज किया। घर या दफ्तर? ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मिरर में देखते इसे पूछा तो सिफा ने एक नज़र दौड़ाते अरमान को देखा। घर चलो, इसने दरिश्तगी से कहते गर्दन मोड़ ली। गाड़ी जा चुकी थी मगर वह अपना चश्मा हाथ में पकड़े खड़ा इसी सिमत में घूर रहा था जिस सिमत में अभी अभी सफ़ा की गाड़ी गई थी। आई लाइक दिस एटीट्यूड, वो मुस्कुराता हुआ ज़ेरे लब पर पड़ाया। सोचा था कि एक जेंटलमैन की तरह तुम्हें मोम कर लूँगा, मगर तुम मेरी सोच से परे की चीज़ हो, इसलिए अब तरीका बदलना होगा। इसने चश्मा आंखों पर लगाया और अपनी गाड़ी में सवार हो गया। शाम ढलती जा रही थी। एक बार फिर से सूरज अपने ख़ताम को था। उजाला एक बार फिर से अंधेरे की कूप में उतरने को तैयार था। एक बार फिर से आसमान पर नारंगी रोशनी अपना हुस्न बखेर रही थी। एक खूबसूरत सा इख्तिताम नए दिन की शुरुआत। गाड़ी में कुरैशी हाउस दाखिल हुई तो वो तन फन करती बाहर निकली। लाउंज में खतीजा बेगम तस्बीह के लिए बैठी थी। इसको आग बबूला होते हुए देखा तो ठिठकी। सिफा ने बैग लाकर सोफे पर पटका और अपना हिजाब खोलकर वहीं ठह गई। सुनहरे बाल किसी आबशार की तरह इसके शानों पर बिखरते चले गए। पानी? इसने सर उठाकर देखा तो सादिया पानी का गिलास लिए खड़ी थी। सिफा ने पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सांस में खत्म कर दिया। सादिया कभी सिफा को देखती तो कभी सामने उलझी सी बैठी खतीजा बेगम को देखती। खतीजा बेगम ने कंधे उचका दिए। खाना लगाऊं? सादिया ने ग्लास वापस पकड़ते हुए पूछा। हाँ, सिफा ने बेजारी से जवाब देते सोफे की पुरसे टेक लगा दी। खतीजा बेगम उठकर इसके पास आई। वो आंखें मूंदे टेक लगाए हुए थी। वो नरमी से इसके पास बैठ गई, एक हाथ इसके सुनहरे बालों पर फेरा और इसके चेहरे पर सर पर फूंक मार दी। सलामत रहो। इन्होंने दुआ दी तो सिफा ने आंखें खोल दी। वो मोहब्बत बाश निगाहों से इसी की जानिब देख रही थी। क्या हुआ है मेरी बेटी को? इन्होंने मोहब्बत से पुचकारा। सिफा को लगा वो एक बार फिर से वही छोटी सी सिफा बन गई है जो स्कूल में किसी से लड़ाई होने के बाद यूं ही मुंह फुलाए घर लौटा करती थी और खतीजा बेगम यूं ही प्यार से इसको पुचकारा करती थी। सिफा ने बेख्तियार आगे बढ़कर इनके गले में बाहें डाल दी। क्या हुआ है मेरी जान? वो अब वाकई परेशान हो गई थी। अम्मी लोग क्यों हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ देते? क्यों हम सबको हमारी रुत, जिंदगी का रूट अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना होता है? वो इनके साथ
लगी आहिस्ता आवाज में कह रही थी। खतीजा बेगम ने मजीद सवाल किए बिना इसके बालों पर हाथ फेरना ही जारी रखा। अम्मी, क्या एक लड़की अपनी मर्जी के रिश्ते में नहीं रह सकती? क्या रिश्तों का खेल सिर्फ मर्द साथ के लिए है? क्या एक औरत का रिश्ते बनाने निभाने का तोड़ने पर कोई इख्तियार नहीं? वो आज न जाने कौन सी भड़ास निकाल रही थी। इख्तियार है मेरी जान, पूरा इख्तियार है। इस्लाम औरत को सारे इख्तियार देता है, अपनी मर्जी का रिश्ता बनाने का भी और तोड़ने का भी। तुम क्यों हलकान होती हो? तो फिर क्यों लोग हम पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं? कोई तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा, तुम बाख्तियार हो। तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की मिजाज हो, और ये इख्तियार तुम्हें तुम्हारी माँ देती है। इन्होंने इसके बाल चूमते हुए इसको सीने से लगाया तो सिफा की आंखों में पानी ठहरा। बाबा कैसे हैं? कुछ देर बाद इसने अलग होते हुए पूछा। ठीक है, सरियाप आया हुआ है, इनको प्रोजेक्ट पर कोई ब्रीफिंग दे रहा है। खतीजा बेगम ने नॉर्मल से अंदाज में बताया तो सिफा ने आईब्रो सुकेड़। मुझे तो नहीं बताया जरियाब भाई ने। हाँ, वो तुम्हारे पापा ने बुलवाया है अचानक। वो कंधे उचका गई तो सिफा उठकर अपने कमरे में चली आई। पीछे खतीजा बेगम ने एक ठंडी सांस खारिज की। सर, वो ज्ञानी साहब ने एक प्रपोजल भेजा है। जरियाब ने फाइल समेटते हुए इनसे कहा। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे, आंखों ही आंखों में इसको बात जारी रखने का कहा। वो दरअसल चाहते हैं कि इनके बेटे की सिफा से कहते कहते जरियाब खामोश हो गया। क़याम कुरैशी ने एक उलझी सी निगाह जरियाब पर डाली। इनका बेटा अरमान अमरीका होता है, आजकल आया हुआ है। इन्होंने मुझे कहा है आपको पैगाम दे दूं। जरियाब वहीं इनके पास खड़ा, हाथ में फाइल थामे, मगर क़याम कुरैशी ने पुरसोच अंदाज में जरियाब की जानिब देखा। इनको एतराज नहीं। वो कहते हैं सिफा तलाक ले ले तो वो निकाह कर लेंगे। जरियाब ने इनके चेहरे के तासुरात देखते हुए जवाब दिया। क़याम कुरैशी सोच में पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। क़याम कुरैशी ने रुख दूसरी जानिब फेर लिया। वालेकुम अस्सलाम सिफा। दरियाब ने मुस्कुरा कर इसके सलाम का जवाब दिया। सिफा ने उमड़ते जज्बात पर काबू पाया और चलते हुए इनके बेड पर आकर बैठे। इसने क़याम कुरैशी का बूढ़ा हाथ उठाकर इसकी पुश्त पर बोस ही दिया। वो हाथ अपनी आंखों से लगाया। इन्होंने एक सख्त निगाह सिफा पर डाली। बाबा, कब तक नाराज रहेंगे? सिफा भराई आवाज में बोली तो वो दोबारा रुख फेर गए। सर, मैं चलता हूँ। जरियाब ने वहां से जाना ही मुनासिब समझा। वो एक निगाह सिफा पर डालता वहां से निकल गया था। बाबा, प्लीज। सिफा ने इनको पुकारा। इन्होंने मुड़कर सिफा को देखा। वो इनकी बेटी थी, इनकी लख्त जिगर। भले वो इनकी बेटी की जान को अमान न दिलवा पाई, थी तो वो इनका खून, इनका दिल पसीजा था, मगर इन्होंने जब्त किए खड़ा रखा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपका ऑफिस संभालूंगी, आपके लिए अपनी जान तक दे दूंगी। प्लीज एक बार बात करें मुझसे। मैं आपका बेटा बन जाऊंगी बाबा। सिफा ने चमकती आंखों से इनको यकीन दिलाने की कोशिश की। इन्होंने रुख मोड़े रखा। बाबा प्लीज एक मौका दे दे। इन्होंने अपना हाथ सिफा के हाथों से छुड़वाया और झटके से इसकी आंखों में देखा। सिफा को उम्मीद की एक किरण नजर आए। तुम मेरे बेटे की अमान न बन पाए, तुम्हें वनी किया गया था, मगर तुम इस काबिल न बन सकी कि वो तुम्हें कबूल करता। इसने तुम्हें कबूल नहीं किया और मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिफा, इनकी आवाज लरस रही थी, मगर इनकी बात ने सिफा को रेसा रेसा कर दिया। बाबा, इसने गैर यकीनी से इनको पुकारा। इनकी आंखों में इस वक्त हकारत थी जिसने सिफा के वजूद को छलनी कर दिया था। और तुम अब भी इसी के निकाह में हो। तुम मेरे बेटे के कातिल के निकाह में हो सिफा। वो दहाड़े। सिफा लरस कर रह गई। वो पिछले इस एक माह में पहली बार इससे बात कर रहे थे और इनकी हर बात सिफा के दिल में सुराख कर रही थी। अगर तुम इसके काबिल नहीं थी, अगर वो तुम्हारी खातिर मेरे बेटे को माफ ना कर सका, तो क्यों अभी तक तुम इसके निकाह में हो? क्यों इसने तुम्हें तलाक नहीं दी? और तुम अभी तक इसी के नाम के साथ वाबस्ता हो। क्या तुम्हारे अंदर खुददारी खत्म हो गई? तुम अपने भाई के कातिल के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर पुरसकून हो सिफा।
वो खांसने लगे थे। सफा के दिल की धड़कन बंद हुई थी। बाबा प्लीज, आप आप संभालें खुद को। इसने उठकर इनको पानी का ग्लास थमाना चाहा, जिसको इन्होंने झटक दिया। पानी का ग्लास फर्श पर रेसा रेसा हुआ। क्या हुआ है? खतीजा बेगम शोर सुनकर फौरन अंदर आई। खयाम कुरैशी बुरी तरह खांस रहे थे, जबकि सिफा के हाथ पांव फूल रहे थे। सिफा, क्या कहा है तुमने इनसे? वो इसको दुपट्टी इनके पास पहुंचे। अम्मी, मैंने कुछ नहीं। जाओ, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। इन्होंने खयाम को संभालते हुए सिफा को हुक्म दिया और वह आंसू पोंछती बाहर भागी। तो खतीजा, इससे कहो मेरे सामने मत आया करे। वो फूलती हुई सांसों उसके बमुश्किल बोले थे। अम्मी, गाड़ी तैयार है। वो जो इनको बताने आई थी, इनकी बात सुनकर सफा वहीं दरगोर हो गई। बाप की नफरत का निशाना बनना किसी भी बेटी के लिए मरने का मुकाम होता है। एक बेटी अपने बाप की शहजादी होती है, और बाप अपनी बेटी का बादशाह होता है। अपने बादशाह की निगाह में ठुकराए जाने का मतलब मौत है, और सिफा को लगा कि वो मर गई है। न्यूयॉर्क सिटी में इस वक्त दोपहर हो रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में एक बार फिर से लड़के जमा हो चुके थे। आज तादाद 15 थी। मुख्तसर सा एहतजाज करीबन 20 मिनट तक जारी रहा, और वो इसके बाद तवक्को के ऐन मुताबिक पुलिस आई और इनको ले जा चुकी थी। आधी रात का वक्त था। अहले मिस्र अपने अपने काम निपटाकर अपने अपने घरों में पुरसुकून नींद की आगोश में थे, मगर वह नाइट आउल उठ गया था। अपने अजली हुलिये में वो रोड पर भागता जा रहा था। आज एक बार फिर से इसके दिमाग की बंद खिड़कियां खुलने लगी। इसको सेनाई पुलिस स्टेशन से आए हफ्ता गुजर चुका था। इस दिन वो एक पब में मौजूद था कि एक लड़की डांस फ्लोर पर अपने रक्स के जौहर दिखा रही थी। वो काउंटर पर यूं ही बिना किसी मकसद के बैठा था। वो शराब को हाथ ना लगाता था। इसके हाथ में बस एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास था कि इसी दौरान कुछ लोग इस पब में दाखिल हुए। वो इसके पास से गुजरे तो एक धक्का सा लगा। हसन ने मुड़कर गुस्से से घूरा, मगर वो लोग आगे बढ़ गए। वो 4 लोग थे। इन्होंने इस डांस फ्लोर पर मौजूद लड़की को पकड़कर खींचा तो वो चीखने लगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। वो तर्क लबो लहजे में मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वहां सब अपनी अपनी अय्याशियों में मगन थे। किसी की नजर इस लड़की पर ना गई। हसन आंखों को मजीद बारीक किए इस मंजर को देख रहा था। वो लोग इस लड़की को घसीटते हुए इसके पास से गुजरे। इस लड़की ने हसन के कॉलर को हाथ डाला। हसन ने झटके से इसकी आंखों में देखा। मदद, मदद, वो पुकारती रही, मगर हसन ने अपना गिरबान झटके से छुड़वा लिया। इसको इन सब से कोई गर्ज न थी। ए, चलो। एक आदमी जो हट्टा कट्टा था हसन पर एक गहरी निगाह डालता इस लड़की को घसीट कर ले गया। वो बेचारी रोती तड़पती रही, मगर किसी ने इसकी मदद न की। क्या खुदा जमीन से चला गया? दूर कहीं से एक नस्वानी पुकार आए थे। हसन के हाथ में मौजूद सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास पर गिरफ्त मजबूत हुई, और फिर देखते ही देखते वो ग्लास उसके हाथों में ही किरचियों में तब्दील हो गया। बार काउंटर पर सॉफ्ट ड्रिंक, कांच और खून पड़ा था। वो वहां से निकला। बाहर वो 4 लोग इस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। चल अंदर। एक आदमी इसको अंदर धकेल रहा था, मगर अगले ही लम्हे इस आदमी का सर इसी गाड़ी के शीशे के आर पार हो गया। कौन है? किसकी हिम्मत? एक ड्राइविंग सीट संभाल चुका था, जबकि बाकी 2 कुछ फासले पर खड़े हुए फोन कर रहे थे। शोर सुनकर इस जानिब आए। अब वो लड़की सहमी सी गाड़ी के अंदर बैठी थी। कुछ ही सानिये गुजरे थे कि वो चारों वहां जमीन पर ऊंधे मुंह पड़े कराह रहे थे। इसने एक आखिरी मुक्का एक आदमी के मुंह पर बरसाया, जिससे वो बेहोश हो गया था। हसन वहां खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। इसने एक नजर अपने लहूलुहान हाथ को देखा और फिर इसको झटक कर गाड़ी के जानिब आया। वो गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। आ जाओ बाहर। इसने इशारा किया तो वो लड़की कपकपाती हुई बाहर निकली। इसने देखा इस लड़की का लिबास जो पहले ही पूरा सा था वो फट चुका था। हसन ने बेसारी से अपनी ड्रेस शर्ट उतारी, इसको पहना दी। शुक्रिया। वो पलटने लगा कि इस लड़की ने भराई आवाज में पुकारा, अपने घर जाओ। इसने बिना पलटे कहा,
नहीं है घर। वो हंसी आवाज में बोली तो हसन के कदम रुके। इसने मुड़कर इसको देखा। रोशनी में अब इसका चेहरा वासे हो रहा था। वो आंखें छोटी की इसके पास चलता हुआ आया। तुम इस दिन ताजमहल होटल में थी। वो अब तफ्तीशी निगाहों से इसको देख रहा था। इस लड़की ने आंखें बड़ी करके इसको देखा। इस दिन तुम वहीं थे? हाँ। तुम? वो कदम कदम इसके करीब हो रहा था। इन लोगों ने मुझे मुझे खरीदा था। मैं तुर्की से हूँ, वो भराई आवाज में बता रही थी। वो वो आदमी बुरा था। इसने इसने वो कह रही थी कि हसन ने हाथ से इसको खामोश करवा दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे अगवा करके लाया गया है। ये लोग मुझे बाजार में नचवाते हैं। और वो कहते ही रोई हुए रो दी थी। हसन का दिल किसी मुट्ठी में भींच लिया। चलो, वो इसको कहता आगे चल दिया था। वो लड़की अपनी जगह जम गई। चलो, मजीद किसी के सामने नाचना है। वो मर्द दहाड़ा तो वो कपकपाती हुई इसके साथ होली। नाम क्या है तुम्हारा? इसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। जहरा। इसने सर झुकाए ही जवाब दिया। सुनसान रोड पर इसके जोगर्स अरताश पैदा कर रहे थे। किसी के भारी कदम आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर बलाकर वक्त का हथौड़ा इसके सर पर एक बार फिर से बरसा और वही टीस इसके सर में उठी। इस बार शिद्दत इतनी थी कि वो रोड पर ही दोहरा हो गया। मगर वो अभी तक खड़ा था अपने कदमों पर। मगर दर्द की टीसें इस कदर शदीद थी कि वो रोड पर ही बैठता चला गया। अफसोस कि आज इसको रोड के बीचों बीच देखने वाला इब्राहिम गुरसी मौजूद था न था। आज हसन किसी भी हादसे का शिकार हो सकता था। वो आज तन्हा था। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से इसी जानिब आ रही थी। हसन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो रोड के बीचों बीच जमीन पर बैठा था। गाड़ी के अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थी। वो जो कोई भी थे, नशे में धुत थे। इनके लिए सामने रोड पर किसी की मौजूदगी मायने नहीं रखती थी। वो अपनी धुन में चले आ रहे थे। इससे पहले कि रोड के ऐन बीचों बीच पड़े इस शख्स को कुचल डालते, एक गोली फिजा को चीरते हुई आई और इस गाड़ी के टायर में सुराख कर गई। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। इन लड़कों ने बमुश्किल गाड़ी को संभाला और गाड़ी कुछ फासले पर जाकर एक पोल से टकरा गई। गोली की आवाज से हसन ने आंखें खोल कर दी। चले यहाँ से। इसको कुछ दिखाई न दिया, मगर कोई नस्वानी जब वजूद इसको बांसों से पकड़कर खड़ा रहा। इसको बस आवाज से सुनाई दे रही थी। किसी नस्वानी वजूद के भारी सांसें इसको घसीटते हुए गाड़ी तक लाई। फ्रंट डोर खोला, इसको अंदर धकेला, इसका सीट बेल्ट बांधा और आकर अपनी ड्राइविंग सीट संभाली। कौन है वहां? रुको। वो लड़के गाड़ी से निकलकर इसकी जानिब आए, मगर वो गाड़ी जन से वहां से निकल गई। वो पीछे इस गाड़ी को देखते रह गए। कौन कौन है तुम? इसने कनपटी पर हाथ रखते उठती टीसों को काबू करके अपने दाईं जानिब बैठी लड़की को देखने की कोशिश की, जो एक स्याह जैकेट में मलबूस थी। बैठ जाएं चुप करके। ये सोशल वर्क है, इसकी तनख्वाह नहीं लेती मैं। इसने बोलते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जबकि हसन की आंखें पूरी खुल गई थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।